رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 7واں باب اور اس کی 7ویں آیت مبارکہ کا ہم مطالعہ کریں گے۔ میرے عزیزو، خداوند کے پاک کلام میں مرقوم ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اسے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ بس جبکہ تم بڑے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ بس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ خدا کا پاک کلام پڑھا، سنا، سمجھا اور اس پر عمل کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیلی بیان اس کے 7ویں باب اس کی 7ویں آیت مبارکہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح کلیسیا کو، لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو یہوہ یری پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو تعلیم دے رہا ہے۔ یہ تعلیم صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے، یہ تعلیم آنے والی کئی صدیوں کے لیے ہے، کئی جانوں کے لیے، کئی روحوں کے لیے ہے، جو آنے والے دنوں میں بھی اس روئے زمین پر آئیں گی، اور لوگ یہاں سے جیسے پیدا ہوتے ہیں ویسے چلے بھی جاتے ہیں۔ لیکن یہ کلام جو ہے یہ لا تبدیل کلام ہے۔ انسان تو پیدا ہوتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن یہ کلام تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یہ 2000 سال پہلے بھی یہی کلام تھا، اور آج 2022 سال بعد بھی یہی کلام ہے، اور آنے والے کئی ہزار سال یا کئی سو سال جو خدا کی مرضی ہے قیامت سے پہلے یہ کلام نہ کوئی تبدیل کر پائے گا، نہ کر پایا ہے، اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا یسوع مسیح فرما رہے ہیں مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ اس بات پر غور کرے، اس کا مطلب ہے کہ جو کوئی مانگے گا صرف اسی کو دیا جائے گا۔ کیا یہ انسان سے مانگنے کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں میرے عزیزو، یہ خدا سے مانگنے کی بات ہو رہی ہے۔ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ اگر نہیں مانگیں گے تو نہیں دیا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ضرورت پوری کی جائے تو آپ کو ضرور ہے کہ آپ اپنے خدا سے مانگیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اگر ہم مانگیں گے تب ہی خدا ہمیں مہیا کرے گا، ہمیں پرووائڈ کرے گا۔ باقیاتاً کا ہم واقعہ دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں کہ خدا نے بنا مانگے ہی آدم کو جو ہے ایک مددگار دیا، عورت اس کے لیے بنائی۔ خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے۔ جب آدم سے گناہ سرزد ہوا، خدا کی نافرمانی ہوئی، تو خدا اس سے پوچھتا ہے، اس سے دریافت کرتا ہے کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا؟ میں نے تو تجھے منع کیا تھا۔ تو آدم خدا کو کہتا ہے کہ یہ اس عورت نے مجھ سے کروایا ہے جو عورت تو نے مجھے دی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا آپ کو کہتا ہے کہ یہ تو نے مجھے دی ہے۔ اس کا مطلب کہ نہ خدا وہ عورت دیتا اور نہ ہی آدم سے وہ گناہ ہوتا۔ خدا نے بنا مانگے آدم کی ضرورت کو جانتے ہوئے اس کے لیے ایک مددگار بنایا، لیکن جب آدم سے گناہ سرزد ہو گیا تو اس نے خدا پر بلیم ڈالنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کو کچھ بھی بغیر مانگے نہیں دیا گیا۔ مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ جب انسان مانگے گا تب ہی اس کو مہیا کیا جائے گا۔ ایک خاص طبقہ ہے جسے بنا مانگے سب کچھ مل جاتا ہے، اور وہ ہے اس کے عزیز لوگ۔ وہ تو اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ جو اس کے محبوب لوگ ہیں، جو اس کے کلام پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، صرف خدا اس خاص طبقے کو، اس خاص فرد کو جو ہے بنا مانگے دیتا ہے۔ وہ تو اپنے محبوب کو تو نیند میں دے دیتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو بنا مانگے سب کچھ مہیا کر دیا جائے خدا کی طرف سے، آپ نیند میں ہی ہو، صبح اٹھیں تو آپ موبائل جب کھولیں تو وہاں پر آپ کو میسیج آیا ہو کہ آپ کا سارا قرضہ اتر چکا ہے، آپ کو میسیج آیا ہو کہ آپ کو ایک بڑا پلاٹ آپ کا کسی لوٹری میں نکلا ہے، یا آپ کے نام پر جو ہے وہ کوئی قرآن اندازی نکل آئی ہے، بڑے بڑے انعامات۔
नींद ही में आपको सब कुछ मिल रहा है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप उसके महबूब लोग बन जाएं। और अगर आप अभी उसके महबूब लोग नहीं हैं, आप ये समझते हैं कि अभी आप ईमान में बहुत छोटे हैं, तो आपके लिए खुदा का पाक कलाम है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। मांगना शुरू कर दो आज से। पास्टर आसिम से नहीं मांगना, पास्टर आसिम मना कर सकता है, लेकिन खुदा मना नहीं कर सकता। क्योंकि जब आप पूरे ईमान के साथ, पूरे दिल के साथ उसके हजूर जाएंगे, तो वो आपको देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। क्या मांग सकते हैं हम ज्यादा से ज्यादा? बड़ी गाड़ी मांग सकते हैं, बड़ा घर मांग सकते हैं, बड़ा चर्च मांग सकते हैं, और क्या मांग सकते हैं? एक अपना प्राइवेट जहाज मांग सकते हैं, प्राइवेट जेट मांग सकते हैं, इसके अलावा बहुत बड़ी कश्तियां हम मांग सकते हैं, हम वजारतें मांग सकते हैं। खुदा देने की कुदरत रखता है। मांगना शुरू करें, वो आपसे प्यार करता है। एक शख्स था, उसकी डेथ हुई, फरिश्ते उसको आसमान पर ले गए। फरिश्ते उसको आसमान पर ले गए, तो जब वो जा रहा था तो वो नीचे नजर करके देखता, तो बहुत ज्यादा जो है लैंड क्रूजर्स, गाड़ियां बड़ी बड़ी जो है, वो बंगले और शान शौकत की चीजें, और हर वो आसाइश की चीज जो इंसान को इस रोए जमीन पर रहते हुए जिनकी जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजें वहां पर थी। वो जो शख्स जो जिसकी डेथ हो चुकी थी, वो फरिश्ता को पूछता है कि ये चीजें किन लोगों की है, कि यहाँ पर तो दुनिया की हर आसाइश की चीज पड़ी हुई है। तो वो फरिश्ता कहते हैं ये उन लोगों के लिए जो खुदा पर ईमान रखते हैं, जो जिन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है। तो वो शख्स कहता है, वो कहता है कि अगर ये उन लोगों के लिए है, तो वो तो लोग पाकिस्तान से बड़ा बुरा हाल है, ऐसे तो ना नौकरियां मिलदियां ने, ना कोई एहो जे मसले मसाइल। पूरी दुनिया में मसीही जो है वो मुश्किलात का शिकार है। तो फरिश्ते को वो कहता है कि ये सब चीजें उनको मुहैया क्यों नहीं कर देता खुदा, अगर ये उन्हीं के लिए? तो वो फरिश्ता उसको जवाब देता है कि खुदा की ये जो लोग है ना, ये जो लाडली कौम है, ये मांगती नहीं है। जब तक ये खुदा से मांगेंगे नहीं, खुदा इनको मुहैया नहीं करेगा। आज आप अपनी रूटीन बना ले, अपनी आदत बना ले कि आपने खुदा से मांगना शुरू कर दो। मांग, तू अपने मुंह को खोल तो मैं उसे बरकतों से भर दूंगा। खुदा भरने की कुदरत रखता है। खुदा के वादे जो है वो सच्चे वादे हैं। खुदा ने जब वादा कर दिया कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, तो आज आप इस कलाम को रिसीव करें और आज से ही ईमान के साथ अपनी ज़रूरियात को खुदा के आगे रखें। आपका काम है मांगना और खुदा का काम है मुहैया करना, देना। ढूंढो तो पाओगे। क्या ढूंढना है? खुदा का पाक कलाम कहता है कि पहले तुम ढूंढो उसकी रास्तबाजी, तो ये सब चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। जब हम उसकी बादशाही को ढूंढेंगे, पहले तुम उसकी ढूंढो उसकी बादशाही, तो ये सब चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। जब हम उसकी बादशाही को ढूंढेंगे, तो ये दुनिया में रहते हुए हमें जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, ये सब चीजें हमें इनाम में मिल जाएंगी। हमें क्या ढूंढना है? उसकी बादशाही को ढूंढना है, उसकी रास्तबाजी को ढूंढना है। हमें क्या ढूंढना है? कोई चीज अगर खो गई है तो उसका ढूंढना है हमें। ये जो दुनिया है ये तारीख है, यहाँ पर तारीखी का दौर है, तो हमारे लिए जो रहनुमाई है वो खुदा का पाक कलाम है। खुदा का पाक कलाम कहते हैं कि ये कलाम जो है ये हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी है। इसकी मदद से हमने किसको ढूंढना है? हमने खुदा की बादशाही को ढूंढना है। और जब हम इसी की मदद से खुदा की बादशाही को ढूंढेंगे, तो ये सब चीजें हमें इनाम में मिल जाएंगी। कितने लोग इनाम में चाहते हैं चीजें? इनाम जो होता है उसमें किसी किस्म की मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो एक गिफ्ट होता है। मेहनत किसी और की होती है और आपको एक तोहफे के तौर पर मिलती है। तो यहाँ पर खुदा का पाक कलाम ये पूरा होता है कि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आगे खुदा का पाक कलाम हमें फरमाता है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। 9वीं आयत मुबारक में मरकूम है, तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जबकि तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। जब हम
इस रोए ज़मीन पर रहते हुए हमारे बच्चे या अजीज़ों कारब हमसे कोई चीज़ मांगते, अगर कोई हमसे रोटी मांगते तो हम उसको पत्थर तो नहीं देते, रोटी देते हैं, बल्कि नाल है भी पूछ लेने की क्यों ला दी ताकि और ज़्यादा VIP रोटी बन जाए। और अगर गोल रोटी की बजाय चौरस बन जाए तो वो तो समझ ले VVIP रोटी बन जाती। तो कहने का मकसद ये है कि हम इस रोए ज़मीन पर रहते हुए जब हमारे अजीज हमसे कोई चीज़ मांगते हैं तो हम उनको दी बेस्ट करके देते हैं, हम उनको अच्छी से अच्छी चीज़ देते हैं। तो हमारा जो आसमानी बाप है वो हमें अच्छी चीज़ें क्यों ना देगा। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं कि आपका खुदा आपको अच्छी चीज़ों से नवाजेगा। हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए जोरदार अच्छी अच्छी चीजों से आपको वो नवाजने की कुदरत रखता है। आज आप मेहरान गाड़ी मांगेंगे वो आपको होंडा सिटी देगा। हालेलुया। हालेलुया। आप जो कुछ मांगना शुरू करें, डेली मांगना शुरू कर दें अपने खुदा से। एक मैं तहकीक एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि दुनिया के चंद अमीर लोगों पर एक रिसर्च की गई कि ये पहले तो गरीब लोग थे, ये एकदम से अमीर कैसे हो गए। तो उस पे उन्होंने जब रिसर्च की तो एक चीज सबके अंदर कॉमन थी, वो ये थी कि जो चीज उनको चाहिए होती थी वो उसको रोज मांगते थे, रोज उसके बारे में सोचते थे, उसके बारे में तसव्वुर करते थे कि अगर ये चीज मुझे मिल जाएगी तो मैं इसको इस तरह इस्तेमाल करूंगा, इस तरह करूंगा। कोई अगर बड़ी कंपनी बनाना चाहता है तो वो अपने ख्यालात में उसके लिए एक जो है वो सारी प्लानिंग करता था। आज आप भी प्लानिंग करना शुरू कर। एक बड़ा घर आपको चाहिए, 10 कनाल का घर चाहिए तो उसकी प्लानिंग करना शुरू कर दें। खुदा के हजूर जब दुआ में बैठते हैं खुदा को कहें कि खुदा मुझे 10 कनाल का घर चाहिए, 10 कनाल का घर चाहिए, उसका मैं उसमें इतने रूम्स मैं बनाना चाहता हूँ, इतने मैं किचन बनाना चाहता हूँ, इस तरह मैं उसकी बालकनी बनाना चाहता हूँ। खुदा के साथ अपने प्लान को शेयर कर, उससे मांगे, उसे कहें कि खुदावंद ये मेरा प्लान है, मुझे ये मुहैया कर, मुझे रुपया पैसा मुहैया कर ताकि मैं इस प्लान को पूरा कर सकूं। तो यकीन जानिएगा खुदा आपको देने की कुदरत है। आप अपने बच्चों को अच्छी स्टडी करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे डॉक्टर्स बने, इंजीनियर बने, तो उनके लिए प्लान्स बनाना शुरू कर दें कि ये जब इंजीनियर बन जाएगा या डॉक्टर बन जाएगा तो मैं इसके लिए यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई मैं इसको करवाऊंगी, या इसी तरह आप ये कह सकते हैं कि मैं इसके लिए क्लिनिक बनाऊंगा या बनाऊंगी या हॉस्पिटल बनाएंगे। इस तरह प्लानिंग करना शुरू कर दें। इंसान के साथ तो हम अपने प्लान्स को शेयर करते हैं, लेकिन अपने खुदा के साथ, अपने आसमानी बाप के साथ अपने प्लान्स को शेयर करना शुरू कर दें। देखिएगा वो आपको और ज्यादा हिकमत से बढ़ना शुरू हो जाएगा और आने वाले दिनों में देखिएगा कि आपके सारे प्लान्स पूरे हो जाएंगे। हालेलुया। तो इसी तरह खुदा का पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। आज से मांगना शुरू करो, ढूंढो तो पाओगे, उसकी बादशाही को ढूंढना शुरू कर दो। दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, उसके दर का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दे। और जब हम बुरे होकर अपने लोगों को, अपने अजीजों को अच्छी चीजें देना जानते हैं तो हमारा आसमानी बाप भी हमें जो है वो अच्छी अच्छी चीजों से नवाजने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आए हम सब अपने सर को झुकाएं और अपनी आंखों